Hello friends, welcome to my channel Science Unearthed. Today my topic is chemical reactions. We will discuss each and everything about chemical reactions in detail. Please like, share and subscribe my channel and see the video up to the last. So you will get the full details of chemical reactions. Now, a chemical reaction is a process that leads to the chemical transformation of one set of chemical substances to another. It means if we mix two chemical substances, then the after reaction they will be transformed into the chemical substances of other type. In simple language, chemical reactions are the process in which new substances are formed. As you see on the screen, there is a reaction of hydrogen and oxygen. So when hydrogen and oxygen both combine or react, then water is formed. It means this is the process which leads to the transformation of reactants. Now, first of all, I will tell you there are some special names of these substances. On the left side of the arrow, if you see the chemical equation of hydrogen plus oxygen equal to H2O, so on the left side, there are two substances, hydrogen and oxygen. These are known as reactants. इनका एक स्पेशल नाम होता है, इनको कहा जाता है रिएक्टेंट्स. एरो के लेफ्ट साइड पे जो दो सब्सटेंसेस होंगे या ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं. और ये सब्सटेंसेस वो हैं जिनके बीच में रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा, आगे रिएक्शन होगा. So these two substances, they are called as reactants. Now in this equation, the reactants are hydrogen and oxygen. So both will react and a new substance, that is water, H2O, is formed. It means a new substance is formed. So this happens in a chemical reaction. It means when when two reactants combine, then one product is formed. The substance that is H2O on the right side of the arrow, it is called product. इसको product कहते हैं. और जो left side पे जो होंगे, जो भी केमिकल सब्सटेंसेस जिनके बीच में रिएक्शन होना है, वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं. और रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं, उसके बाद जो नया सब्सटेंस बनता है, उसको कहा जाता है प्रोडक्ट. इट मींस the substances which take part in chemical reactions are called reactants or reagents, and the chemical substances that are formed are called products. तो इसमें ये जो रिएक्शन अभी दिखाया है, उसमें रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिनके बीच में रिएक्शन होता है और उससे जो नया सब्सटेंस बना, तो वो कहलाता है प्रोडक्ट. उसे एरो के राइट साइड पे रखा जाता है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. It means a chemical reaction is a process that leads to the chemical transformation of one set of chemical substances. अब इसमें जो one set of chemical substances कहा गया है, वो है H2 और O2. This is the one set of chemical substances, H2 and O2. इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एक नए सब्सटेंस में. ट्रांसफॉर्मेशन मींस चेंज, बदल गए. ये नया सब्सटेंस बना और वो है H2O. केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है. द केमिकल रिएक्शन
are the process in which new substance are formed. Now this new substance which is formed, it has new properties. इसका क्या मतलब हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ, रिएक्टेंट्स हैं वो, और हाइड्रोजन की अगर हम प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे वो अलग लिख लेंगे, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज वो स्टडी करेंगे, अलग लिख लेंगे उनको, उसका रिकॉर्ड. देन यू विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ H2O. तो H2O की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल अलग और नई, बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टीज होंगी. जो नई न्यू सब्सटेंस बना उसमें, तो केमिकल रिएक्शन में दैट हैज न्यू प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टी अलग है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, और जो वाटर की प्रॉपर्टीज होती हैं they are different from the property of hydrogen and oxygen. It means the substance or the products which are formed in a chemical reaction, they have new properties. Then one thing is there, a rearrangement of atoms takes place between the reacting substances. Rearrangement of atoms takes place. इसको आप जरा ध्यान से देखें, a rearrangement of atoms. अब ये जो रिएक्शन था नीचे H2 plus O2 equal to H2O, इसमें पहले H2 रखा है एक जगह और ऑक्सीजन है. अब इनमें क्या रीअरेंजमेंट हुआ एटम्स का? वो उधर जो H2 था उसके साथ एक O कंबाइन हुआ, ये एक नया अरेंजमेंट हुआ. इट मीन्स ये रीअरेंजमेंट हुआ एटम्स का. ये पहले जो अरेंजमेंट था वो ये था H2 अलग, O2 अलग. नाउ देयर इज a rearrangement of atoms between the reacting substances to form new substance. rearrange होके एटम्स और न्यू सब्सटेंस या प्रोडक्ट बनाते हैं. और ये क्लियर हो गया आपको कि जो लेफ्ट साइड पे वो वाले केमिकल सब्सटेंसेस जिनके बीच में रिएक्शन होना है, they are called reactants, and the chemical substances that are formed as a result of chemical reaction, they are called as products. So in this reaction, product is H2O, and the reactants are H2 and O2. So this is a chemical reaction that can happen in a chemical laboratory. But in our daily life, there are so many chemical reactions that are happening around us. As for example, the souring of milk. मतलब ये हुआ कि कुछ केमिकल रिएक्शंस हमारे चारों तरफ, हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें अपने आप होते रहते हैं. सोअरिंग ऑफ मिल्क ये है कि अगर आप मिल्क को रूम टेम्परेचर पे रख के छोड़ दें 1 दिन 2 दिन या कुछ घंटों के लिए, आवर्स के लिए, तो वो खराब हो जाता है. टू अवॉइड दिस यू कीप द मिल्क इन रेफ्रिजरेटर. आप घर पे उसको फ्रिज के अंदर रखते हो. अगर उसको रूम टेम्परेचर पे रख के छोड़ दिया जाए, देन इट बिकम्स सॉर, वो खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है. सो दिस सोरिंग ऑफ मिल्क is also a type of reaction. This is chemical reaction. अब ये हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे सामने, हमारे आसपास होता रहता है. And again, if you take the example of formation of curd. So curd is prepared from milk, and you keep the milk with mix with curd, and then it is turned into curd. So the formation of curd is also a type of chemical reaction. This is also a type of chemical reaction. And the third, you can take the digestion of food in our
body. Digestion of food, it takes place inside the digestive system, so it is also a chemical reaction. And one thing you occasionally see that if you keep an iron object open in air, so it gets rusted. अगर आप जैसे कभी ऐसा होता है कि कोई टूटी हुई चीजें या खराब चीज ऐसे ही कहीं पे आप रख के छोड़ देते हैं, आयरन की, लोहे की, तो कुछ टाइम के बाद उस पे रस्टिंग हो जाता है, रस्ट, ऊपर उसकी एक लेयर, रेड रेड ब्राउन ब्राउन सी कलर की एक लेयर आ जाती है पूरी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो रस्ट होता है, जिसको आप हिंदी में जंक कहते हैं, रस्टिंग. This is called as the rusting of iron. So, how it happens? Uh, it happens uh, mostly in rainy season. So, this is rusting of iron. This is also a type of chemical reaction. Burning of fuels. When you burn some fuel, then this is also a type of reaction, chemical reaction. So, these are some of these are the examples of chemical reactions that are happening around us. So, अब आप इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मैं उसको दोबारा रिपीट कर रही हूँ जस्ट फॉर रिवीजन. केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उसमें जिन सब्सटेंसेस के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स, and they are placed on the left side of the arrow in a chemical equation, and the product or the chemical substance that is formed after the reaction is called the product, और उसको राइट साइड पे रखा जाता है. सेकंड थिंग क्या थी? दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट. तो ये तो इनके नाम हो गए. रिएक्टेंट्स वो हुए जिनमें रिएक्शन होता है. प्रोडक्ट जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो प्रोडक्ट होता है. और प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट्स. एक ये खास बात होती है, याद रखनी है आपको, कि ये जो न्यूली फॉर्म्ड प्रोडक्ट है, दैट हैज entirely different properties from reactants from which it is prepared. So this is another thing. Now, third thing you have to remember that there is a rearrangement of atoms in reacting substances. जो reacting substances होते हैं, जिनको reactants कहते हैं, उनमें जो उनके एटम होते हैं वो इधर से उधर रीअरेंजमेंट उनका हो जाता है. कोई एटम कहीं से उठ के कहीं पे आके बैठ जाता है, कोई एटम इधर से उठ के वहां बैठ जाता है. दिस इज कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट. और उस रीअरेंजमेंट का रिजल्ट ये होता है कि एक बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोडक्ट बन जाता है, और इस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अलग होती हैं रिएक्टेंट से. तो ये पूरी एक समरी हो गई, रिवीजन हो गया कि केमिकल रिएक्शन हम कहेंगे किसको, उसमें क्या होता है, और जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो रिजल्ट आता है, जो नया प्रोडक्ट बनता है, वो हो गया प्रोडक्ट. तो ये क्लियर हो गया. देन केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड. उसमें आपने पीछे देखा कि H2 प्लस O2, इसके कॉम्बिनेशन से बना H2O. अब एक ऑक्सीजन कहाँ से आया? O2. O2 उधर मॉलिक्यूल था ऑक्सीजन का. O2 मीन्स उसमें ऑक्सीजन के दो जो एटम हैं उनके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है. O2 मॉलिक्यूल जो होता है ऑक्सीजन का, उसमें क्या है? दो ऑक्सीजन के एटम्स एक बॉन्ड से कनेक्टेड हैं. तो अब एक ऑक्सीजन का ये वाला एटम वो जाके बैठा है H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ.
तो ये तभी इस रीअरेंजमेंट से बना ना वाटर। तो इसमें क्या हुआ कि एक जो बॉन्ड था ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में वो ब्रेक हुआ और एक ऑक्सीजन एटम फ्री हुआ, वो जाके अटैच हुआ H2 के साथ और उसके बाद बना वाटर। तो वही बात इसमें कही गई है कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व breaking of old chemical bonds which exist between the atoms of reacting substances and then making of new bonds between the rearrangement rearranged atoms of new product। अब न्यू जो प्रोडक्ट बनना है उसके साथ जाके जो उधर से कोई भी एक एटम आया है, वो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, तो वो दूसरे उसके एलिमेंट के साथ अटैच भी होगा ना, उसके साथ जुड़ेगा, कंबाइन होगा। तो ये एक ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स उसमें अंदर होता है। बहुत बॉन्ड्स जो हैं ब्रेक होते हैं, तो तब जाके ये प्रोडक्ट बनता है। अब एक एग्जांपल आप ले लो, जैसे कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO। और ये जो है ये रिएक्शन, ये आप इसको अपने आप करके देख सकते हैं। एक मैग्नीशियम रिबन आता है in the form of ribbon। Magnesium is an atom or element, so this is found in a form of ribbon। So this magnesium ribbon is heated, it combines with oxygen of the atmosphere to form magnesium oxide। मैग्नीशियम रिबन को एक लेते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह आप करके देख सकते हैं। You take 3-4 centimeters of magnesium ribbon and clean it by rubbing it with sandpaper। ये सैंड पेपर से इसको, जो मैग्नीशियम रिबन की सरफेस है उसको क्लीन क्यों किया गया है, उसका रीजन मैं आपको बता रही हूँ कि मैग्नीशियम के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। तो उस लेयर को हटाने के लिए ये एक सैंड पेपर से उसको क्लीन किया है। और इसको हटाने की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है, वो ये है कि जब ये प्रोटेक्टिव लेयर ऊपर से हटेगी तो उस तभी तो ये मैग्नीशियम बाहर एक्सपोज होगा एयर के साथ, तभी मिलेगा ये। तो इसलिए इसको सैंड पेपर से क्लीन कर लेते हैं। नाउ होल्ड दिस रिबन विद ए पेयर ऑफ टोंग्स एंड इट्स अदर एंड ओवर अ बर्नर। इसको टोंग से पकड़ लेते हैं इसको, और पकड़ लेते हैं और उसको फिर एक बर्नर, उसका जो दूसरा एंड है मैग्नीशियम रिबन का, उसको बर्नर के फ्लेम के ऊपर रखते हैं। देन मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट्स बर्निंग विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। बहुत ब्राइट एक लाइट आती है इसमें से। देन होल्ड द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन ओवर अ वॉच ग्लास। अब ये जो मैग्नीशियम रिबन है, ये इसमें से एक जो फ्लेम है, जब उसके ऊपर इसको रखेंगे तो ये जलने लगता है, और इस जलते हुए मैग्नीशियम रिबन को टोंग्स से पकड़ के एक वॉच ग्लास के ऊपर ले जाते हैं। तो इसमें से एक पाउडर जस्ट लाइक डस्ट वो नीचे गिरता है, उसको आप इकट्ठा कर लेंगे उसमें वॉच ग्लास में, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है पाउडर्ड फॉर्म में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक ये रिएक्शन है Mg+O2 इक्वल टू MgO। इन दिस Mg and oxygen O2 they are reactants and MgO is product, that is magnesium oxide। Now if you want to know whether a chemical reaction happened or not, मतलब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के, जिससे कि एक कोई भी पहचान सकता है, देख सकता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं।
कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 is change in color. If you combine these two things, citric acid combined with potassium permanganate solution. As you know that potassium permanganate solution is purple in color. पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन अगर एक टेस्ट ट्यूब में लेके आप देखें तो वो पर्पल कलर का होता है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये मिला रहे हैं साइट्रिक एसिड। तो जब ये मिलाया जाता है KMnO4 सॉल्यूशन के अंदर, पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन के अंदर, देन द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डिसअपियर्स। यहाँ पे KMnO4 फॉर्मूला है पोटेशियम परमैंगनेट का, और C6H8O7 फॉर्मूला है साइट्रिक एसिड का। अब एक चीज आपको मालूम है कि जो साइट्रिक एसिड है दैट इज फाउंड इन लेमन जूस, ऑल सिट्रस फ्रूट्स, ऑलमोस्ट सभी में मिलता है साइट्रिक एसिड। तो हम एक तो ले लेंगे KMnO4 सॉल्यूशन, वो पर्पल कलर का है, टेस्ट ट्यूब में ले लिया। उसमें हमने मिक्स करा लेमन जूस। लेमन जूस के अंदर क्या है, साइट्रिक एसिड। जब दोनों को मिक्स करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, हेंस देन व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, after mixing the citric acid, shake the test tube. Now the purple color of KMnO4 becomes colorless. उसका जो पर्पल कलर है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो गया, और पूरा सॉल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट का हो जाता है कलरलेस। इस वाले रिएक्शन में आपने क्या देखा कि एक कलर चेंज हुआ। पहले जो रिएक्टेंट था, एक रिएक्टेंट था पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, दूसरा रिएक्टेंट था साइट्रिक एसिड C6H8O7। इन दोनों को जब हमने मिक्स किया, मिक्स होने से पहले कलर था पर्पल। अच्छा, मिक्सिंग के बाद अंदर क्या हुआ होगा, केमिकल रिएक्शन हुआ होगा दोनों में, साइट्रिक एसिड और KMnO4 में, और उस रिएक्शन का रिजल्ट ये हुआ कि कलर डिसअपियर हो गया पर्पल, और पूरा सॉल्यूशन कलरलेस हो गया। तो इसमें हमने देखा कि कलर चेंज हुआ है। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। सो चेंज इन कलर इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की एक पहचान ये हो गई कि अगर चेंज इन कलर है कहीं पे तो हम ये सोचेंगे, हम ये इसको समझ जाएंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। So this is the first characteristic of chemical reaction. Now the equation of this reaction is given below. KMnO4 thrice KMnO4 plus C6H8O7 is equal to 3HMnO4 plus C6H5K3O7. So this is the complete reaction that takes place in this. Now second characteristic of chemical reaction is the evolution of gas. जैसे फर्स्ट उसमें आपने देखा एग्जाम्पल में कि कलर चेंज हुआ, कलर चेंज से हम पहचान गए कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन की क्या है कि अगर कहीं पे इवोल्यूशन ऑफ गैस है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन हम करवा रहे हैं रिएक्टेंट्स में और उसमें कोई गैस निकली है, कोई गैस बन के बाहर आई है, तो हम समझ जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। Some chemical reactions they are characterized by evolution of gas. Now take one example. Zinc metal is found in the form of granules. छोटी छोटी गोलियां सी होती हैं granules.
तो जिंक ग्रेन्यूल्स ले लेंगे और उनका रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये एक इक्वेशन दी हुई है नीचे, Zn प्लस HCl इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2। इसमें Zn हो गया जिंक ग्रेन्यूल्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट ली गई है, HCl हो गया, उससे बना ZnCl2, जिंक क्लोराइड कहते हैं इसको, और हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस इसमें बाहर आई है आफ्टर रिएक्शन। तो रिएक्शन होने के बाद अगर कहीं पे इवोल्यूशन ऑफ गैस है, मतलब गैस बाहर निकलती है बन के, देन दैट रिएक्शन विल बी केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसको अगर आप देखना चाहें एक्सपेरिमेंटली इस रिएक्शन को, तो एक कॉनिकल फ्लास्क होता है, उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स ले लो थोड़े से, और उसमें आप मिक्स करिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्लास्क के अंदर। जब इसको ऐड करेंगे, आफ्टर एडिंग वी कैन सी बबल्स ऑफ hydrogen gas coming out of flask. So these bubbles will be seen. It means some gas is coming out. This is the sign. Clear दिखाई दे रहा है कि कोई गैस बाहर आ रही है जिसके कि बबल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है और इसके बबल्स हमें दिखाई देते हैं। एक रिएक्शन और है, सोडियम कार्बोनेट। इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स करो तो उससे बबल्स बाहर आते हैं गैस के, लेकिन इस वाले रिएक्शन में जो बबल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के हैं, वो गैस थोड़ा डिफरेंट है उससे। तो ये हो गया। अब इसमें आप पिक्चर में स्क्रीन पे आप देखिए, ये मिक्स करा है हमने इसमें फ्लास्क के अंदर दोनों चीजें, और उससे हाइड्रोजन गैस निकली है और ये बबल्स उसके ऊपर आ रहे हैं। Zn प्लस HCl इक्वल टू ZnCl2 उसमें बना अंदर रह जाएगा फ्लास्क में, और हाइड्रोजन गैस is coming out in the form of bubbles. So this is the second characteristic. Now in some reactions we see the change in temperature. चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर हम फील करके भी देख सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ सम थर्मामीटर भी देख सकते हैं हम। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनके अंदर चेंज इन टेम्परेचर है। जिंक ग्रेन्यूल्स व्हेन दे आर रिएक्टेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देन दे शो द चेंज इन टेम्परेचर। Means equation is this: Zn plus H2SO4 equal to ZnSO4 plus H2. In this reaction, heat is produced. It means if you touch the container, that flask, with the help of your hand, then it will be hot. So heat is evolved. So this is the sign that some chemical reaction happened. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, ये देख के हम पहचान सकते हैं कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। वो कैसे पता लगाएंगे? हम देखेंगे कि चेंज ऑफ कलर हुआ है, या ये हीट इवॉल्व हुई है, या फिर बबल्स आए हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है। अगर ये सब कुछ हो रहा है, देन दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। इसकी इक्वेशन आपके सामने है, Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4, जिंक सल्फेट है और हाइड्रोजन गैस निकली और हीट इवॉल्व हुई है। उसको आप टच करेंगे फ्लास्क को या टेस्ट ट्यूब को, देन यू विल फील that this is very hot. Other example is reaction of quick lime with water to give slacked lime as product. So this quick lime is CaO, calcium oxide. When it is mixed with water,
then it gives calcium hydroxide and heat. Again, in this reaction you will feel that heat is evolved. अच्छा, हीट को हम देखने के लिए कंपैरिजन कर सकते हैं कि जैसे हमने एक उसमें टेस्ट ट्यूब में पहले लिया क्विकलाइन, उसको टच करके देखो, इट फील्स कोल्ड, ये कूल है बिल्कुल। और उसके बाद जब इसमें मिक्स करेंगे वाटर, तो उसके बाद आप इसको टच करो तो ये मतलब हीटेड दिखाई देता है। इट मीन्स सम हीट इज इवॉल्व्ड इन द reaction. So these are the characteristics of chemical reaction. Now next characteristic is precipitate formation. Some chemical reactions have a unique characteristic of forming a precipitate after reaction. If you consider the reaction between potassium iodide का फॉर्मूला होता है Ki, और इसके साथ हम किसका रिएक्शन करवा रहे हैं, लेड नाइट्रेट। इसका जब रिएक्शन होता है ये लेड नाइट्रेट, तो उसमें KNO3 मिलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। तो इसमें लेड आयोडाइड का एक प्रेसिपिटेट बनता है येलो कलर का, जो पहले नहीं है। बिफोर रिएक्शन जब रिएक्टेंट्स थे अलग अलग, उसमें ऐसा थिक और येलो कलर का प्रेसिपिटेट नहीं था। और उसके बाद जब रिएक्शन हो गया कंप्लीट, उसके बाद PbI2 का येलो कलर का थिक प्रेसिपिटेट, ये एक प्रेसिपिटेट एक जस्ट लाइक कर्ड होता है जो उसके टेस्ट ट्यूब के अंदर दिखाई देगा, ये बन गया। तो ये क्या शो कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, दैट सम केमिकल रिएक्शन टुक प्लेस। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। इससे आप पहचान गए कि हाँ, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब इसमें लेड नाइट्रेट ले लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, लेड नाइट्रेट, और उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिक्स किया जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि लेड आयोडाइड का एक वो होता है प्रेसिपिटेट, वो फॉर्म होता है कर्ड लाइक। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये सब कैरेक्टरिस्टिक का सिंपल मीनिंग ये है कि पहचान, आप कैसे पहचानोगे कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। तो उसमें हमें क्या क्या देखना है पहचानने के लिए, कि कोई पीछे से मैं रिवाइज करवा रही हूँ, कलर चेंज तो नहीं हुआ, हीट प्रोड्यूस तो नहीं हुई, इवोल्यूशन ऑफ गैस तो नहीं हुआ, या कहीं पे कोई प्रेसिपिटेट अगर बना है तो फिर एक केमिकल रिएक्शन वहां पे हुआ है। तो ये इसकी इक्वेशन है आपके सामने इस रिएक्शन की। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। देन नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट? These are three states in chemistry: solid, liquid and gas. These are the three states of matter. Matter in तीन states में पाया जाता है, solid, liquid और gas. तो अब कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं, रिएक्टेंट्स लेंगे उसमें करवाने के लिए, तो वो जिस स्टेट में होंगे ना, तो उनका जो स्टेट है वो आफ्टर रिएक्शन चेंज हो जाएगा। ये अगर हमें ऐसा चेंज दिखाई देता है, देन इट इज कंफर्म्ड दैट देयर इज अ केमिकल रिएक्शन, इससे पहचान लेंगे। तो इसको देखने के लिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि वैक्स जो है, जब उसको हम बर्न करते हैं एयर के अंदर, उसको जलाते हैं, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बन गए। अब वैक्स, व्हाट इज वैक्स? वैक्स इज रिएक्टेंट एंड दिस इज इन सॉलिड स्टेट। इसका स्टेट क्या है, यहाँ पे हम स्टेट की बात कर रहे हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन का ये है कि चेंज इन स्टेट। तो अब हमें स्टेट देखनी है कि क्या है।
तो रिएक्टेंट जो हमारा वैक्स है उसका स्टेट है सॉलिड। जब उसको हमने बर्न किया एयर के अंदर, उसका कंबशन हो गया, उसके बाद क्या बना? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब वाटर आपको पता है लिक्विड स्टेट में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज अगेन गैस। तो इसमें क्या चीज आपने देखी कि जो चीज सॉलिड स्टेट में थी वो आफ्टर रिएक्शन उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो गई, लिक्विड और गैस बन गए। एंड दिस टेल्स अस दैट चेंज इन स्टेट। तो यहाँ पे एक रिएक्शन परफॉर्म हुआ है, तो ये क्लियर हो गया। तो ये जो भी हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का, अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में एक मीनिंग देखें तो वो ये है कि कैसे पहचानोगे आप के कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नाउ डोंट फॉरगेट टू like and share and subscribe my video. Thank you very much.